हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी पोर्शन और पार्ट 2 का ये चैप्टर रहेगा। और चैप्टर का नेम है ह्यूमन डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 3। In last video we have discussed the second chapter of the part 2 geography class 12th, that is the migration. And this chapter, that is the human development, already we have discussed in the part 1 chapter number 4, that is again the name, that is human development. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो एक बार फिर से हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस को समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। तो डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। क्लियर? डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके। और डेवलपमेंट जो है वो हमेशा क्वालिटेटिव चेंज होगी, क्वालिटेटिव चेंज होगी, जबकि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी, क्लियर, क्वांटिटेटिव चेंज होगी। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाइज, एंड ग्रोथ ऑलवेज क्वांटिटेटिव। ओके। नाउ कम टू द चैप्टर। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है रिलेटेड टू द दिस चैप्टर। तो एक रेखा है, रेखा की फैमिली जो कि उत्तरांचल, यानी अभी उत्तरांचल का न्यू नेम है, दैट इज़ उत्तराखंड। तो वहाँ पे रहते हैं उसकी फैमिली, और बेसिकली फार्मर फैमिलीज़ हैं। और वो अपनी मदर के साथ हाउस होल्ड उसके कामों में काम करती है, मतलब उनका हाथ बटाती है। उसका ब्रदर स्कूल जाता है, बट रेखा did not receive any education. Clear? After she was dependent on her in-laws after the marriages, and she was widowed immediately after the marriage. Clear? उसके बाद उसका ब्रदर जो है, जो कि दिल्ली में जॉब करता है, तो उसको अपने साथ कहाँ पे ले आता है? दिल्ली में ले आता है। देन फर्स्ट टाइम शी ट्रेवल्ड बाय बस, ट्रेन, और उसने इतना बड़ा सिटी फर्स्ट टाइम देखा। आफ्टर दैट शी अट्रैक्ट, दैट इज़ बिल्डिंग्स, रोड्स, वेन्यूज़, और कई तरह की फैसिलिटीज़ जो थी वो उन फैसिलिटी ने उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। देन अगेन दिस इज़ द वन पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे ही वो सिटीज़ से फैमिलियर हुई, तो वहाँ पे उसने क्या देखा? झुग्गीज़, जिसको हम स्लम, क्लस्टर, ट्रैफिक जैम्स, कंजेशन, क्राइम्स, पॉवर्टी, स्मॉल चिल्ड्रन begging on the traffic lights, people sleeping on the footpath, polluted water, air, and other types of the negative point of the development she has been seen in that particular area or that city. So this story totally indicates that what is the development? Big buildings are the development, or the small children are begging on the roads, on the traffic lights? So that is the development. So simply we can say that development has two sides. Development has two sides of the same coin. If there are some are the development, some positive point, then negative point will be occurred. Okay. So again, so what happened? There is one important point or important question related to this chapter, that is Eurocentric viewpoint of development. What is the Eurocentric viewpoint of the development? Eurocentric means Europe, जो यूरोप के सेंटर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द यूरोपियन कंट्री रिलेटेड टू द डेवलपमेंट? सो दे थिंक दैट व्हाट इज द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज, दैट इज providing, that is the availability of everything. Clear? Assess of some of these things means development that is always in the positive side. So European countries, they thinking about the development, that development always, that is the positive features. Clear? Positive feature like good employment, good recreational facility, good education. Clear? Water supply, electricity. Clear? That is employment is there, happiness among the people. So that is the development, but that is only the one side of the development. But for a post colonial country like India, हमारे कंट्री में after the colonial period, different types of the problem has been originated, and during the colonial period these problems have occurred. So which are these? Like marginalization, social discrimination, regional disparity, then poverty is there. Clear? Poverty is there, unemployment is there, illiteracy is there. All these are the negative sides of the positive, negative sides of the development, means that is the negative points. Okay. So
all we say that development is a mixed bag of opportunities. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एक्सप्लेन. सो मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज से मतलब है दैट इज पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ डेवलपमेंट. तो पॉजिटिव साइड में क्या आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो दूसरी साइड क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर. तो इस तरह से इट इज डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ मिक्स बैग ऑफ द अपॉर्चुनिटी. मीन्स सम एरियाज आर मोर बेनिफिटेड related to the development and some are neglected by the development. Okay, so this paragraph is totally related to the development is a mixed bag of the opportunities. Okay, then next one is the, अब नेगेटिव साइड्स में, डेवलपमेंट के नेगेटिव साइड्स में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस आर देयर. जब डेवलपमेंट होगी तो एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा, और एनवायरमेंट पोल्यूशन लीडिंग टू द इकोलॉजिकल क्राइसिस. इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या आ जाएगी, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एंड दैट इज ऑल लीड्स टू द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन. क्लियर पॉइंट, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन. और ये सारे के सारे क्या हैं, मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, दैट इज द नेगेटिव साइड्स ऑफ द डेवलपमेंट. ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट इज डेवलपमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द same coin. Okay, now move toward the next one, that is important point related to the human development. So human development, that is the first publication of the human development, that is human development report by UNDP. सबसे पहली जो इसकी रिपोर्ट थी वो किसने पब्लिश की, UNDP ने. और कब की, 1990 में. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में UNDP की फर्स्ट रिपोर्ट कब पब्लिश की UNDP ने, सो दैट इज इन 2002. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर. वर्ल्ड फर्स्ट रिपोर्ट आई 1990 में, और इंडिया में फर्स्ट कब आई, 2002. यानी इंडिया को कब ऐड किया गया, 2002 में. ओके, अब दिस रिपोर्ट इज टोटली डिपेंड ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्राइटेरिया, इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या होंगे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर्स थे. क्लियर. कुछ एजुकेशन से रिलेटेड थे, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट के. हेल्थ, एजुकेशंस एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ये तीनों ही क्या थे, इंडिकेटर थे. इन्हीं के ऊपर UNDP क्या करता है, क्राइटेरिया बनाता है, और उसी को रैंकिंग में फिट करता है पूरे कंट्रीज़ को. और वो रैंकिंग क्या रहेगी, 0.8 एंड अबव, ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गए. 0.5 टू 0.8 ये किस में आ गए, मीडियम में. क्लियर. और लेस देन 0.5 किस में आ गए, लो में, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी हम स्पेशल कैटेगराइजेशन करनी होगी स्टेट्स की या कंट्रीज़ की, तो एरियाज ऑफ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एरिया ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड एरिया ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, now what is the human development? So human development simply it is the process of enlarging people's choices. enlarging people's choices, ये निमोनिक है, EPC, सॉरी क्या निमोनिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का, EPC. एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, उसके बाद क्या लिखा है, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम साउंड फिजिकल एंड एनवायरमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पोलिटिकल फ्रीडम्स. क्लियर. सो एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट के फादर कौन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट. क्लियर. पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और ये 13th फाइनेंस मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, और फादर हैं डॉक्टर महबूब उल हक. क्लियर. और एक और उनके साथ रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, वो थे डॉक्टर अमर्त्य सेन. और इनको 1999 में इकोनॉमिस्ट में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था इंडियन कैटेगरी से. क्लियर. इंडिया के फर्स्ट रेसिपेंट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स फील्ड से नोबेल प्राइज़ गेट किया. क्लियर. उसके बाद ये तो सारे का सारा रिलेटेड था ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया में अभी रिसेंटली 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट इज़ इन द केरला, एंड सेकंड वन लोएस्ट है, दैट इज़ इन द बिहार. मैप वर्क में ये क्वेश्चन आ सकता है. अब क्वेश्चन आता है, वाई द
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज हाई इन द केरला, तो क्यों है? बिकॉज ऑफ गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, access to resource, then employment, good environment conditions, clear. So that is, and availability of natural resources, good relationship of human being with nature, clear. Then population growth is less. So ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? और एम्प्लॉयमेंट, क्लियर, पीपल लिविंग इन अ प्रॉस्पर्स वे। सो ये सारे के सारे किसके? केरला में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कॉजेज हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है वाई देर इज लो ह्यूमन डेवलपमेंट इन बिहार। तो बिहार में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर, सबसे पहले पॉवर्टी है, पॉवर्टी है, लिविंग कंडीशन आर वेरी पुअर्स, है ना, देन लो एजुकेशन है, इलिटरेसी है, वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर्स, क्लियर। उसके बाद वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, एयर पोल्यूशन वहाँ पे है, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द बिहार पॉइंट्स, ओके। सो अगर वर्ल्ड का सिनेरियो बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है नॉर्वे में, और सबसे कम कहाँ पे है? दैट इज़ नाइजर में, ओके। तो वो है नाइजर, क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, तो सिंपल से टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या इंडिकेटर ले रहे हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन क्राइटेरिया। तो देखिए इकोनॉमिक में हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पॉवर्टी को, कि किसी रीजन में पॉवर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है। उसके बाद डेप्रीवेशन क्या है, डेप्रीवेशन कितनी है, क्लियर, क्या लोगों को फुल फूड मिल रहा है, 3 टाइम्स का बेसिक नीड्स लोगों की फुलफिल हो रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन माल न्यूट्रिशन, क्या लोगों को जितनी हमारी बॉडीज़ के लिए मिल्क हो गया या ग्रीन वेजिटेबल्स होगी या जितनी कैलोरीज की हमारी ज़रूरत है, क्या बॉडी को वो मिल रही हैं। देन इलिटरेसी, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, स्कूल्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, क्लियर, बेसिक फैसिलिटी क्या है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रीजुडाइसेस एंड ऑल टाइप ऑफ द सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस, क्या वहाँ पे जस्टिस हो रहा है प्रॉपर, क्लियर। एम्प्लॉयमेंट, एक और इसमें पॉइंट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। सो ये सारे के सारे क्या हैं। एंड असेस टू रिसोर्स, एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी है, इंडस्ट्री की कंडीशन कैसी है, सर्विस सेक्टर की कंडीशन कैसी है। तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बाद है इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्दी लाइफ, यानी हेल्दी लाइफ के क्या इंडिकेटर हैं। तो हेल्दी लाइफ में सबसे पहले आता है हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर की कंडीशन कैसी है। हेल्थ केयर के बाद वहाँ पे मेडिसिन्स क्या अवेलेबल्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स कैसे हैं, डॉक्टर अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में। देन उसके बाद सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, क्या हॉस्पिटल्स में या सेफ्टी रिलेटेड टू देयर हेल्थ, शॉप्स में क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, स्कूल्स हैं तो स्कूलों में क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मॉर्टेलिटी कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है, डेथ रेट कितनी है, क्लियर, डिजीज़ किस तरह की हैं, ओके। तो ये सारे के सारे किससे हैं? हेल्दी लाइफ से रिलेटेड है, और इसमें भी पॉइंट कवर हो सकता है एजुकेशन का, क्लियर। उसके बाद है सोशल इंडिकेटर्स ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट, और सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल टर्म है, दैट इज डेवलपमेंट इज फ्रीडम। डेवलपमेंट इज फ्रीडम मीन्स डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें फ्रीडम हो, और फ्रीडम किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, जो लेबर का काम करते हैं बॉन्डेज लेबर होती है, क्लियर, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इलिटरेसी। दीज आर द मेन सोशल एम्पावरमेंट इंडिकेटर्स, क्लियर। नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल राइट, इक्वल वेजेस, ये सारे के सारे किसके इंडिकेटर हैं? सोशल एम्पावरमेंट के इंडिकेटर हैं, क्लियर। उसके बाद ये सारे के सारे से उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया में दैट इज प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन आर कंट्री, और प्लानिंग कमीशन का भी न्यू नेम क्या है? NITI, नीति आयोग, नीति आयोग। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर। और उसके बाद क्या करता है? ये पूरे के पूरे स्टेट और यूटी को एनालिसिस करता है, देन गिविंग इट्स रिपोर्ट। तो हमने पहले डिस्कस किया जैसे केरला में सबसे हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिहार में सबसे लोवेस्ट है, क्लियर। सो रीज़न क्या है, क्यों हाई है? सोशल इंडिकेटर वहाँ पे देखे जाते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर देखे जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर देखे जाते हैं, उसके बेस के ऊपर एक रैंकिंग बनती है और दैट डिसाइड द ह्यूमन डेवलपमेंट इन आर कंट्री, ओके।
उसके बाद देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मीन्स पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अब ये तीनों ही इस ट्राइंगल के थ्रू अंडरस्टैंड करो, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसके लिए हो रही है? पॉपुलेशन के लिए। अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट किसके लिए हो रही है? पॉपुलेशन के लिए। और यूज़ क्या किया जा रहा है? एनवायरमेंट को। क्लियर? और एनवायरमेंट को जो बेसिकली फॉर द पॉपुलेशन। Okay, if we want to correlate with these three, then population should have to be interact environment in a positive way, and environment giving the different kinds of opportunity for the population and also for the development. Clear? So हमें जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, सोशल इनक्वालिटीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, डेप्रीवेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है, अब्यूज़ ऑफ मीन्स एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं आजकल की सोसाइटी में इंक्रीज हो रही हैं। एंड वाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? दैट इज़ द पॉपुलेशन, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल हाई। The day by day the world population is increasing at a very rapid rate. That's why these problems has been occurred day by day. Clear? Then different types of the problems has been discussed by the people, and discussed different types of the problems already discussed by the neo-Malthusian theory. So neo-Malthusian theory क्या है, इसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। ये नियो माल्थुसियम स्टोरी जो थ्योरी जो है, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और रेडिकल इकोलॉजिस्ट भी हैं। रेडिकल मीन्स रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो ये सोचते हैं कि पॉवर्टी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो जो भी इस अप्रोच से जुड़े होंगे उनको बोलेंगे रेडिकल पीपल। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी हमारे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, उसको जितने भी रिच पर्सन है उनसे क्या, उनसे मनी को लिया जाए और उनको क्या किया जाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपनी किसको, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, कर सकें। तो इसको बोलते हैं माल्थुसियम थ्योरी। क्लियर? तो इस तरह से ये थ्योरी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, दे ऑलवेज एडवोकेटेड द रीइंफोर्समेंट ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन टू। अब बैलेंस बिटवीन टू क्या है? एक तरफ नेचर है और एक तरफ मैन है, तो इन दोनों के बीच प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप होने चाहिए और गुड बैलेंस जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो यही आइडिया जो था उनका, एक हमारी क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1972 में, और उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। तो उसमें इस पॉइंट को ऐड किया गया। देन शूमैकर की बुक आई, दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में, उसमें भी इस पॉइंट को ऐड किया गया। एंड ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई, आवर कॉमन फ्यूचर, दैट इज इन 1987। और इन तीनों के ऊपर 1972, 1974 और 1987 में जितनी भी ये पब्लिकेशन हुई, चाहे वो ब्रुटलैंड कमीशन है, चाहे शूमैकर बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, या और क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट है, इसमें सभी में गांधी जी के आइडिया को टोटली कि वी हैव टू रिजाइड विद द नेचर इन अ हार्मनी वे एंड गुड रिलेशनशिप शुड बी maintained. So those idea have been added, and on the basis of that, that is agenda 21, already we have discussed in 10th class, agenda 21 for the 21st century, and that is rio conference और हैपेंड हुई थी 1992 में। हो सकता है यहाँ पे ये डेट गलत हो, 1992 में हैपेंड हुई। कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की ये कैपिटल सिटी है, दैट इज़ द रियो। क्लियर? तो 1992 में, और इसको नेम दिया गया था अर्थ समिट 1992 में, अर्थ समिट 1992 में। और इसमें क्या आइडिया निकला? दैट इज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट, डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट, डू द डेवलपमेंट but do not harm the environment. So that is called as the actual development is called as the human development. Okay, I hope you understand this chapter very carefully. So which are the important terms related to, so what is the index of the human development, मतलब इंडिया का रैंक क्या है अभी? अगर ये 2005 का डाटा है, अगर हम बात करें 2018 की, तो अभी का रैंक हमारा है 129, ये याद रखना है आपने। क्लियर? विच इज़ द हाइएस्ट रैंक? दैट इज़ द केरला। क्लियर है? लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है? सो दैट इज़ द बिहार। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 0 to 6 इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6, दैट इज़ पंजाब। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? गिव 2 रीजंस फॉर लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बिहार के या नदरन स्टेट के दे सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है,
क्लियर, इनइक्वालिटीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉइंट सारे ऐड हो सकते हैं। गिव 2 रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। अब चाइल्ड सेक्स रेशो क्यों हो रही है? फीमेल फोर्टिसाइज हो रहा है, क्लियर, फीमेल फोर्टिसाइज हो रहा है, इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये सारे का सारा चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।